Hi everybody. Can you all hear me? Because I don't know if I should use headphones or what I should do. Eid Mubarak aapko bhi. Om Shanti. You can go from here. No, this is not nothing. I want to do the... Hi everybody. We'll wait for 2 minutes. Shivani Ben is going to join at 6 o'clock. So in the meantime, I'm just trying to get ready. I'm a bit nervous. This is the first time I'm doing it also. So Asad? Oh, hi. Sunny Cool. All of you, yes, we'll all be able to join a little later. Give me 5 more minutes till I introduce Shivani Ben. And then once she speaks, then we will, have questions from you all. And I'm going to be... Thank you, Kuldeep. Gosh, this is... See, I love chatting with you all and I can do it very casually, but this time because I have a guest and this is the first time I'm doing a conversation with somebody as esteemed as Sister Shivani, because I'm also a great admirer of hers and I know thousands and millions of people who are. So I'm just a little bit excited and a little bit tense, of course. So here we go. Okay, now I need to just request you all that if you do send your questions, in case I'm not able to read at the same time, be a little patient, and if you can send a WhatsApp on the number which I have given you, because I'll ask somebody to monitor that and then I'll be able to see those also. So let's try and be as organized as we can. Oh, Naresh, thank you, that's so sweet. Hi from Chandigarh. Hi, Charan. God, this is exciting. Okay. Gosh, these calls, if they come in between. My first film, that was Trishul. It was actually Trishul. And of course, I knew nothing about acting at that time. And I was extremely young. I was in school in the 10th class. So I was about 15 and a half. So for me, that was a special, huge, big thing of my life that I started working. And I had no intention of working. Hi, Rizwan. Oh gosh, Gabuchi, so sweet. Rekha Gupta, how are you? And I'm going to just try and put my speakers on. So maybe when Shivani Ben speaks, we'll be able to hear her a little bit. Okay, I think now my speakers are also on. My WhatsApp number, it was put on the post. It's in my Insta live also, and it's Insta page also. It's on my Insta with the calls which I get in between, which make it so difficult to concentrate. Okay, it is 6 o'clock already, and I think very soon.
Okay, friends, now let's get serious. And we are going to be having at least a half an hour to 1 hour chat with her. Oh yeah, you're right. Actually, I should switch to the airplane mode. But will I be able to do the live chat at that time? I hope everybody won't get cut off. Shivani Ben is online. Is that what somebody said? Shivani Ben, if you're online, please can you just give me one quick thing again? I think it's gone very behind. I don't know if I can add you this way. Okay, thank you. I think I'll do that. Om Shanti. Om Shanti, Shivani Ben. Om Shanti. Thank you. Thank you. So you are actually absolutely on the dot. In fact, I got late in getting you in because so many messages were coming and I was No problem at all. No problem at all. So, Shivani Ben, before you have also arrived, people have been asking questions and people have been wanting to talk to you. But unfortunately, Insta doesn't allow us to take in more people than two. So I can't allow more people to come in, but we'll definitely address their questions. Sure. सबसे पहले मेरे खुद के जो क्वेश्चन है आपसे एक दो पूछूं कि हम जैसे आई एम श्योर यू बीन टॉकिंग अबाउट दिस अ लॉट दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स. किसी ने सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि हम मजबूर इतने हो जाएंगे, घर बैठे हैं. पहले तो हम सोचते थे कब छुट्टी मिलेगी, कब घर बैठ पाएंगे, कब इंजॉय करेंगे फैमिली का टाइम, और अब वही चीज हमें जब एक्सेस में मिल रही है तो कई लोगों को बहुत भारी पड़ रहा है. अब बेचैन हो रहे हैं लोग, फैमिलीज में इश्यूज भी आ रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इरिटेशन हो रही है छोटी छोटी बातों पे. तो आपको लगता है ये नॉर्मल है कि हमें इससे थोड़ा सा अलार्म होना चाहिए या क्या चीजें हमें ख्याल में रखनी चाहिए? छोटी सी एक गलती जिसके साथ हम जीवन जीते हैं वो ये है कि सिचुएशन अगर ठीक नहीं है तो मेरा मन डिस्टर्ब होगा ही. हमने सोचा ये नॉर्मल है, और ये कोविड से रिलेटेड नहीं है, ये कोविड से पहले भी था. कोविड से पहले भी हम कहते थे बात ही ऐसी थी इसलिए गुस्सा आ गया, बात ही ऐसी थी इसलिए मैं उदास हो गई, उन्होंने कहा ही ऐसा तो मैं हर्ट हो गई. सो ऑल दिस वोकैबुलरी मेंट कि मेरा माइंड सिचुएशन और लोगों पर डिपेंडेंट है. और जब हम ऐसा जी रहे थे तो कोविड आ गया, तो हमने कहा डर तो नेचुरल है, एंजाइटी तो नेचुरल है, फिर लॉकडाउन आ गया, उसके साथ एडजस्ट करने में मुश्किलें. तो क्राइसिस है, लेकिन वो क्राइसिस बाहर है, और अब तो वो क्राइसिस भी समझ में आ गया है. इनिशियल एज वो समझ में नहीं आ रहा था, अब काफी कुछ समझ गया है, सबको पता है उसके लिए क्या करना है. डॉक्टर्स ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट नो अब उनको क्या करना है, इसीलिए थिंग्स आर गेटिंग बेटर. लेकिन क्राइसिस बाहर था पहले दिन से भी. नेचुरल जो होता है वो होता है शांत रहना, निर्भय रहना, ध्यान रखना, लेकिन डरना नहीं. लेकिन उसके लिए डेली बेसिस पे लाइटी नहीं है. नेचुरल, निडर, शांत और शक्तिशाली रहना. तो अभी जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो लोगों को अपनी प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देने लग गए हैं. तो कुछ पॉइंट्स जो कुछ हमें क्वेश्चंस लोगों ने भेजे हैं आपसे, वो मैं आज थोड़ा सा पूछ लूंगी. ये हमारे अतुल हैं जो गोवा से बात पूछ रहे हैं कि सोल अचीव ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. उसके बाद हम लोग समझते हैं कि हम एक आत्मा है और हमने आज ह्यूमन फॉर्म लिया है. व्हाट्स द पर्पस एंड हाउ डू यू अचीव स्पिरिचुअल ग्रोथ इन दिस पाथ एंड हाउ टू फाइंड दैट पाथ? क्योंकि सबका पाथ अलग होता है, सबका एक सेम पाथ नहीं होता है. तो हाउ डू वी फाइंड आवर पाथ? और हमें मालूम, ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा है. वी गेट सो इन्वॉल्व्ड इन आवर फिजिकल बॉडी. तो ये अगर आप हमें थोड़ा सा इसमें गाइड. मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, फिर ये मेरे रिश्ते हैं, फिर ये मेरा रोल है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ये सारा कुछ मेरा है, शरीर भी मेरा है, नाम भी मेरा है, रिलीजन भी मेरा है, देश भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, पर एवरीथिंग इट इज माइन, ये मेरा है, मेरा है। तो आई कौन है जो कह रहा है ये मेरा है? दैट इज द एनर्जी। उसको हम आत्मा बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। शब्द से मैटर नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय आई द सोल, आई एम टॉकिंग टू यू द सोल। इफ आई कनेक्ट लाइक दिस, तो फिर हम जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी बात करेंगे, हम इक्वलिटी से बात करते हैं, हम सम्मान से बात करते हैं, हम प्यार से बात करते हैं, क्योंकि हम उनसे बात कर रहे हैं, उनके औहदे से, उनके रिश्तों में उससे नहीं बात कर रहे हैं। जब हम औहदे से बात करते हैं तो हमारे बात करने के तरीके बदल जाते हैं। आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, हम एक ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं, गेट पर एक भैया खड़ा है, वो हमें नमस्ते करता है या सल्यूट करता है, हम शायद उसकी तरफ देखते भी नहीं, क्योंकि हम उसके रोल को देख रहे हैं, और रोल को देखकर हमें नमस्ते करने की जरूरत ही नहीं लगी। और फिर हम आगे जाते हैं उस बिल्डिंग में, फिर एक रिसेप्शनिस्ट है, हम उसको स्माइल कर देते हैं। फिर हम ऊपर जाते हैं, एक मैनेजर है, हम उसको हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। और फिर जब हम और ऊपर जाते हैं तो चेयरमैन है, हम उसको ज्यादा ही नमस्ते, ज्यादा ही हेलो करते हैं। तो बिकॉज वी आर टॉकिंग टू द रोल। अब ये करने से क्या हुआ, 10 मिनट के अंदर मेरा बिहेवियर 4 बार चेंज हो गया। फ्रॉम द भैया एट द गेट टू द चेयरमैन इन द ऑफिस, आई चेंज्ड 4 टाइम्स, एंड ऑल ऑफ देम आई वॉज अ रोल टॉकिंग टू अ रोल। तो ये हमारे जीवन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। रिगार्ड देना है पोजिशन को, तो इफ आई एम गोइंग टू द चेयरमैन, आई विल स्टैंड, आई विल गिव अ चेयर, दैट इज रिगार्ड टू द रोल। लेकिन रिस्पेक्ट इज टू द सोल। That's such a beautiful difference. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट टू द सोल, रिगार्ड टू द रोल। रिगार्ड तो बिल्कुल देना है, क्योंकि समाज में हम काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, हमें अचीवमेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, रोल के लिए। सपोज घर में कोई बड़े हैं, वो भी तो रोल है ना, वो हमसे बड़े हैं, तो हम उनके पैर छूते हैं, हम नमस्ते करते हैं, वो रोल। लेकिन बात करने का तरीका और सम्मान सबका एक दूसरे के साथ सेम होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्योर डिवाइन सोल है। सो ये लाइन अगर याद रहे, रिस्पेक्ट टू द सोल, रिगार्ड टू द रोल। रिगार्ड बाहर होता है, रिस्पेक्ट यहां से होता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी है। एंड पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि हम जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे आप एक एक्टर है, आपने कितने सारे रोल्स प्ले किए होंगे, लेकिन हर रोल में आप जो एक्टर है, आपकी पर्सनालिटी उस रोल को बनाती है, राइट? तो आपका ही रोल 4 अलग अलग रोल लोग कर सकते हैं। रोल सेम होगा, स्क्रिप्ट सेम होगी, डायलॉग सेम हो, सब कुछ सेम होगा, को एक्टर्स भी सेम होंगे। लेकिन अगर एक्टर डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो रोल निभाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्टर की पर्सनालिटी रोल में आती है। तो यू एज अ वाइफ, यू एज अ मदर, यू एज अ प्रोफेशनल, ये सब आपके रोल्स है। लेकिन एक्टर कौन है? एक्टर वो सोल है। तो आप जो सोल है, आपकी जो पर्सनालिटी है, प्योरिटी की, पीस की, हैप्पीनेस की, वो आपके हर रोल में आनी चाहिए। दिस इज पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि मेरा हर रोल बहुत ब्यूटीफुली प्ले हो, क्योंकि मेरी ब्यूटीफुल क्वालिटीज हर रोल में आनी चाहिए। तो हम हर सीन में, हर सीन, सारा दिन एक ड्रामा ही तो चल रहा है, हर सीन आफ्टर सीन है, लेकिन हम अपने ड्रामा में कैसे रोल प्ले करते हैं, कि अगर हमारे को एक्टर ने अच्छी वाली लाइन नहीं बोली, तो हम अपनी लाइनें भूल जाते हैं और कुछ और ही बोलना शुरू कर देते हैं। और फिर हम कहते हैं उन्होंने बात ही ऐसी की। लेकिन जब आप फिल्म करते हैं, ड्रामा करते हैं, सामने वाला एक्टर कुछ भी बोले, आप अपनी लाइन, अपना रोल एकदम एक्यूरेटली प्ले करते हैं। बस जीवन में भी यही करना है। जीवन में भी यही करना है, कि को एक्टर ने कैसे बिहेव किया, कैसे एक्टिंग की, कैसे स्क्रिप्ट बोला, दैट इज देयर रोल। आई हैव टू फोकस ऑन माई क्वालिटी इनटू माई रोल। सो दैट्स द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। चाहे हम एक स्टूडेंट हैं, चाहे हम एक पेरेंट हैं, चाहे हम एक प्रोफेशनल हैं, हमारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज हमारे हर रोल में आनी चाहिए। तो हम हर सीन में सबको सुख दे रहे होंगे, सबको दुआएं दे रहे होंगे, और सबको खुशी बांट रहे होंगे, और हमारी Put my airplane
I'm sorry, I don't think I can put it on airplane mode. Even the Wi-Fi goes off then. Yeah, No problem. somebody guided. अच्छा, तो जो आपने सम ऑफ द मैटर हमें बताया कि मैं और मेरा दो अलग चीजें हैं. मैं इज माय सोल एंड मेरा इज मेरी हजार चीजें हैं दुनिया की. ना, जस्ट छोटी सी करेक्शन, माई सोल नहीं, इज माई सोल नहीं, आई द सोल, आई. आई सोल एंड बाकी सब कुछ मेरा है, हाँ, वही मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसका अलग अलग वो है. तो अभी जो दूसरा सवाल है, हाउ आर बॉडी माइंड एंड सोल कनेक्टेड, ये आपने हमें समझा दिया ऑलरेडी. किसी ने पास्ट लाइफ के बारे में पूछा है कि हमारा जो पुनर्जन्म है उसके बारे में, हमारी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुनर्जन्म. और हमें हाँ, जब हमें समझ में आता है कि आई एम अ सोल एंड दिस इज माई बॉडी, तो ये एनर्जी है, ये मैटर है. तो जब हम कहते हैं डेथ, तो डेथ मीन्स द बॉडी नो मोर इज फंक्शनल, तो शरीर. और इसीलिए जब हम अंतिम संस्कार करते हैं, चाहे हम जला रहे हैं, बरी कर रहे हैं, वो शरीर का कर रहे हैं. जब एक डॉक्टर एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है, तो वो सिस्टर को कहता है, सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाइए. लेकिन सपोज अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो कहते हैं, सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाइए. तो जब अंदर गए थे तो मिस्टर सो एंड सो थे, बाहर कहते हैं बॉडी को लेकर जाइए, क्योंकि वो जो सोल है वो चली गई, अब ये बॉडी है. तो जो विनाश होता है या संस्कार, अंतिम संस्कार होता है, वो शरीर का होता है. तो आत्मा कहाँ चली गई फिर? आत्मा का क्या हुआ? इसीलिए जब हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो पंडित जी कहते हैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, which means this is not going to get destroyed, this will get destroyed. तो वो आत्मा वहां से निकलकर माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, enters the womb of the mother, enters the womb of the mother, and कुछ महीने के बाद एक बेबी पैदा होता है. और जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पंडित जी को टाइम देते हैं और पंडित जी जन्म पत्री बना देते हैं. वो जन्म पत्री किस आधार से बनी? कि संस्कार और कर्म जो वो आत्मा लेकर आई थी, संस्कार एंड कर्म जो वो आत्मा लेकर आई थी, उस पर ग्रहों का प्रभाव. इसीलिए एक ही पेरेंट है, उसके जुड़वा बच्चे पैदा हो, ट्विंस, एक आधे मिनट का ही फर्क होगा, लेकिन डेस्टिनी बिल्कुल अलग होगी. डेस्टिनी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि दोनों जो पास्ट के संस्कार लेकर आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है. सो यस, वी कैरी आवर पास्ट संस्कार, वी कैरी आवर पास्ट कर्म, बट देन आवर प्रेजेंट कर्म इज मोर पावरफुल. तो हम पास्ट से कुछ भी लेकर आए हो, हमारा प्रेजेंट कर्म अगर सही होगा, हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं. ये मैंने ये काफी साल तक ऑब्जर्वेशन किया. आई यूज्ड टू सी दैट कि ट्विन्स हैं, एक पर्सनालिटी 100% अलग है. मतलब टू दैट एक्सटेंट आई हैव सीन ब्रदर्स, वन हु डजंट टच अल्कोहल, वन हु इज अल्कोहल, वन इज लिटरली फिजिकल अपीयरेंस में भी अलग है. और जो समझाया बिल्कुल वही वजह है कि सेम कुंडली है, सेम संस्कार है, सेम अपब्रिंगिंग है, सेम एवरीथिंग, खाना पीना सेम है, फिर भी वो इतने अलग कैसे बन जाते हैं? पेरेंट्स सेम है, स्कूल सेम है, फ्रेंड्स सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ पास्ट डिफरेंट है. हाँ, वही आत्मा का पास्ट अलग है, पास्ट डिफरेंट है. अच्छा, किसी ने मुझसे अभी पूछा है कि हाउ डू वी ओवरकम एंजाइटी, बिकॉज दैट सीम्स टू बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे. एवरीबडी इज टॉकिंग कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है. एंजाइटी अटैक, ये वर्ड मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था. आजकल हम सुन रहे हैं कि एंजाइटी अटैक हुआ मुझे, आई एम ऑन मेडिकेशन फॉर एंजाइटी. तो ये चीजें नई हैं कि पहले भी थी पर हम रिकग्नाइज नहीं करते थे, और अभी जो इतना ज्यादा हो गया है उसको हम कैसे डील करें, कैसे उसका सामना करें? जैसे शरीर कमजोर होता है तो कुछ कुछ बीमारियां हो सकती हैं, तो फिर हम शरीर को ठीक करने के लिए राइट डाइट, एक्सरसाइज वो लेते हैं. और वैसे भी हमारा शरीर इसलिए ठीक चलता है क्योंकि हम डेली अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं. अगर हम कुछ दिनों तक अपनी बॉडी का ध्यान रखना छोड़ दे तो कई बीमारियां इसमें बन जाएंगे. लेकिन हम डेली बेसिस पे अपने माइंड का ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं करते. We do nothing to take care of the mind. We do everything to take care of the body. कोई भी चीज के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपनी कार का ध्यान रखते हैं, अपने प्लांट्स का ध्यान रखते हैं,
अपनी फैमिली का तो रखते ही हैं, अपने पेट्स का ध्यान रखते हैं, अपने घर के फर्नीचर का भी ध्यान रखते हैं, सिर्फ एक अपने मन का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने कहा इसका क्या ध्यान रखता है, ये तो अपने आप चलता रहता है। फिर भी अगर हम 20-30 years पीछे जाएं, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, देयर वाज नो वर्ड एज एंजाइटी, देयर वाज नो वर्ड एज डिप्रेशन, इनफैक्ट देयर वाज नो वर्ड एज स्ट्रेस ऑल्सो। हम सिर्फ थोड़ी सी टेंशन कभी हो गई तो हो गई एग्जाम वाले दिन, और दैट वाज इट। लेकिन जब से मीडिया, फिर सोशल मीडिया, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मतलब 24/7 मीडिया कंजम्पशन, तो जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी डाइट है माइंड की। मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वॉट वी वॉच, रीड, लिसन इज आर इमोशनल डाइट। जैसे जो हम खाते पीते हैं, दैट्स आर फिजिकल डाइट, सो वी हैव टू ड्रिंक वाटर सो मेनी टाइम्स इन अ डे, वी हैव टू ईट एवरी few hours, we have to consume certain nutrients. If we don't do that, we'll have a deficiency. हमारे को डेफिशिएंसी तो 2 महीने में हो सकती है अगर हमने कोई चीज ठीक से नहीं खाई। सिमिलरली, इफ वी डोंट कंज्यूम द राइट कंटेंट, देन वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ पीस, we have deficiency of power, we have deficiency of happiness, because we are consuming content of criticism, comparison, jealousy, stress, anger. There's a lot of negativity and a lot of content that we consume. तो हमें अपनी इमोशनल डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हम 24 घंटे जो क्लिक करते रहते हैं, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हम ये पिछले 3 महीनों को भी देखें, ज्यादा फियर एंड एंजाइटी इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर कंटिन्यूसली बढ़ते गए कि यहाँ क्या हो रहा है, उस शहर में कितना हुआ, उस देश में कितना हुआ, कंटिन्यूसली वी वर कंज्यूमिंग कंटेंट। तो उसकी वजह से माइंड पे बहुत फियर क्रिएट हुआ है। तो एक, कंटेंट सारा दिन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि हमें कितना कंटेंट और किस क्वालिटी का कंटेंट। आप देखिए, जब आप मूवीज करते थे पहले शुरू में, तो इतने टाइम के बाद एक मूवी आती थी तो एवरीबडी वुड लुक फॉरवर्ड कि अच्छा एक मूवी रिलीज हुई। टीवी पर एक एपिसोड आता था, नेक्स्ट वीक उसका दूसरा एपिसोड आता था। देन वी शिफ्टेड टू अ डेली एपिसोड, नाउ वी शिफ्टेड टू 10 एपिसोड्स एट वन टाइम वी आर वॉचिंग। सो हाउ विल द माइंड टेक सो मच ऑफ कंटेंट, एंड उसमें भी फिर क्वालिटी। आपके टाइम की मूवीज देखिए, फिर उसके पीछे की मूवीज देखिए, एक एक शब्द, vocabulary, गाना, एक, there is a change. And now the vocabulary we are using, the songs, the vocabulary we are using, it is going on changing. तो उसकी वजह से हमारे इमोशंस भी बहुत बदल चुके हैं। तो कम से कम 30 मिनट्स हमें अच्छी खुराक सुबह सुबह मन के लिए ले लेनी चाहिए। एंड दैट अच्छी खुराक इज कंटेंट विच इज प्योर। कुछ भी प्योर कंटेंट कंज्यूम कीजिए ऑन अ डेली बेसिस। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी या कोई पॉजिटिव वीडियो, कोई सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बुक, कुछ भी ऐसा हमें सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा, वी शुड कंज्यूम समथिंग वेरी प्योर एंड पॉजिटिव फॉर द माइंड। वो हमारे मन को शक्ति देगा। एंड सारा दिन में हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए। न्यूज कितनी सुननी है सारा दिन में, कितनी बार वही विजुअल्स बार बार देखने हैं, दैट हैज अ वेरी बिग इफेक्ट ऑन द माइंड। ज्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिसकी वजह से मैंने आज आपको इनवाइट किया, सब बोलते हैं वो उठ के सुबह या सोने से पहले आपको सुनते हैं। So I think they are really benefiting by hearing आपकी calming. Yeah, those two timings are most important. First thing in the morning and last thing before we go to sleep. लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनल्स की हाईएस्ट टीआरपी भी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड लास्ट थिंग बिफोर वी गो टू स्लीप होती है। तो रात को सोने से पहले अगर हमने नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम किया तो हमारा माइंड बहुत स्टिम्युलेट हो जाता है। जैसे क्राइम शोज, वायलेंट मूवी, मिस्ट्री, जिससे माइंड स्टिम्युलेट हुआ, उसके बाद हम सोएंगे लेकिन अच्छी नींद नहीं सोएंगे। We will think we slept, but the mind does not sleep very well. तो वो भी एक एंजाइटी का कारण बन जाता है। I have experienced that जब बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग शोज देखते हैं, जो वेल मेड कहते हैं हम उन्हें, बहुत इफेक्टिव है, थ्रिलिंग है, बट इट डिस्टर्ब्स योर स्लीप। रात को विजुअल्स आते हैं उसके सोने से पहले, द कैरेक्टर्स एंड ऑल। सो आई थिंक ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने पूछा कि एंजाइटी हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों कनेक्टेड। So yes, put into our system is, let me just read what are the other questions.
my mom's question is how to protect yourself when there are toxic people around us and some negative situations are created. As a young girl, how do I protect myself? This is Vibha asking this question. तो ये विभा देखिए, आज कोविड हमारे चारों तरफ है, हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं? वी हैव सर्टेन वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ ना। अगर हम थोड़ी देर भी वो प्रोटेक्शन को अगर छोड़ देंगे, मतलब अपना मास्क, अपना हाथ धोना, अपना डिस्टेंस, तो देन वी आर वल्नरेबल, हम कैच कर लेंगे इन्फेक्शन। इसी तरह इमोशनल इन्फेक्शन भी हम तब कैच करते हैं जब हम खुद इमोशनली लो होते हैं। अगर हम इमोशनली हाई वाइब्रेशनल होंगे तो हमारी आसपास की नेगेटिविटी हम पर असर नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। आप देखिए, हम एक प्लेस ऑफ वर्शिप में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाते हैं, हम हर तरह के मन लेकर वहां जाते हैं, नेगेटिव माइंड्स भी लेकर जाते हैं, लेकिन उस जगह की वाइब्रेशन इतनी ऊपर होती है कि वो हमारे माइंड को शांत कर देती है, बजाय कि हम मंदिर की वाइब्रेशन को दूषित करते हैं। So it is, we have to be very high vibrational in our mind, then we will influence them rather than we getting influenced by them. तो अपनी emotional immunity को बढ़ाना है, and that is why that daily spiritual study and meditation very good emotional immunity system. What about people? हम कई नेगेटिव, आजकल मैंने देखा है कई लोगों को हम फॉरवर्ड कर देते हैं वेरी वेरी विट्रॉलिक कंटेंट, और वो समझते हैं कि अरे बहुत सेंसेशनल है, लेट मी फॉरवर्ड इट, यू नो, ग्रूसम इमेजेस, वो सब चीज़ हम बिना सोचे बिना समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ, आई ऑलवेज माय फ्रेंड कि ये चीज़ें हमें आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। हमें आ जाती हैं कई बार, तो हम समझते हैं कि हम भी फॉरवर्ड कर दें, बेसमझी में बेसोची में कर दें। ये एक बहुत, अगर हम कर्मा फिलोसफी समझे कि हर कर्म का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, तो जैसे अगर आपके घर कोई मेहमान आया है, क्या आप उसको एक दूषित खाना खिलाएंगे? क्या आप उसको एक सड़ा हुआ एप्पल खिलाएंगे? नहीं, आप अपने रेफ्रिजरेटर से बेस्ट एप्पल चूज करेंगे, क्योंकि आपको अपने मेहमान को खिलाना है। ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करने चाहिए जो उनके माइंड को स्ट्रेंथन करते हैं, ना कि उनकी इमोशनल हेल्थ को डिप्लीट करते हैं। दैट इज वेरी डीप कर्मा, ये बहुत डीप कर्म बनता है अगर हम किसी को ऐसा मैसेज भेज रहे हैं। एंड सेंसेशनल डज नॉट ओनली मीन ऑलवेज लाइक दैट, बट कोई किसी को नीचे खींच रहा है, कोई किसी की ग्लानि कर रहा है, कोई किसी का बार बार मजाक उड़ा रहा है, वो भी भेजना हमारे माइंड के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज हम वैसे बनते जाएंगे, हम भी फिर लोगों की निंदा करेंगे, हम भी अपने आप को लोगों से कंपेयर करेंगे, हम भी लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे। सो इवन दैट कम्स अंडर टॉक्सिक कंटेंट। तो इसको तो फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहिए, इसको तो अपने फोन पे रखना भी नहीं चाहिए, हमारे फोन की वाइब्रेशंस भी खराब हो जाती है ऐसा कंटेंट रखने से। सो वी शुड डिलीट इट फ्रॉम आवर फोन, एंड वी शुड डिलीट इट इवन विदाउट वॉचिंग एक्चुअली। Yes, that is true. आपको थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा ये एनर्जी इसकी ठीक नहीं है। जस्ट डिलीट विदाउट वॉचिंग। जैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सपोज यू डिसाइडेड नॉट टू ईट फ्राइड, सपोज यू डिसाइडेड, तो कोई आपको कितने भी प्यार से समोसा खिलाए, आप कहेंगे नहीं, नो मीन्स नो, आई एम नॉट ईटिंग। सेम थिंग फॉर कंटेंट, नो मीन्स नो, आई एम नॉट वॉचिंग एंड आई एम नॉट फॉरवर्डिंग। शिवानी, दो तीन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू वी डू व्हेन पीपल टेक अस फॉर ग्रांटेड? ये आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच पीपल फील वेरी, कि हम सबके लिए करते हैं, डू दिस मच फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर फ्रेंड्स, एंड दे जस्ट टेक अस फॉर ग्रांटेड। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग वी नीड टू नो हाउ टू हैंडल इट, क्योंकि दर्द होता है, उससे दुख भी होता है, और कई बार गुस्सा भी आता है। दो लोग हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं। वी हैव टू रिमेम्बर, ये दो सोल्स हैं। हम लोग लोगों को रिश्ते के लेबल के थ्रू देखते हैं कि मैं माँ हूं, मैंने अपने बच्चे के लिए किया तो मेरा बच्चा भी मेरे लिए ऐसा करेगा। नहीं, आई एम अ सोल, ही इज अनदर सोल। मेरे संस्कार उसके संस्कार अलग है, मेरी क्वालिटीज उसकी क्वालिटीज अलग है, मेरी कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी अलग है। अब सपोज आपकी कैपेसिटी है बहुत हेल्प करना किसी की, तो आप हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं है सामने वाले के पास भी सेम संस्कार है, उनके पास भी बहुत अच्छे संस्कार है, लेकिन डिफरेंट वाले संस्कार है। सपोज आपकी क्वालिटी है कि आप हर एक के साथ प्यार से बात करते हो, लेकिन आपका बच्चा आपसे जोर से बात कर देता है,
तो यू कैन नॉट से मैं तो आपसे हमेशा प्यार से बात करती हूँ, फिर आप जोर से क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि आप दोनों के संस्कार, नेचर, क्वालिटी डिफरेंट है. सो टेकिंग फॉर ग्रांटेड मीन्स कि मैं आपके साथ कैसा भी बिहेव करूं, आप अपनी क्वालिटी को नहीं छोड़ेंगे. What is it called taking for granted? हम किसी चीज को खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम दुकानदार से बोलते हैं कितने टाइम की गारंटी है इस प्रोडक्ट की. तो गारंटी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली. कोई प्रोडक्ट अगर 1 साल की गारंटी दे रहा है, दूसरा दुकानदार 5 साल की गारंटी दे रहा है, तो हम 5 साल वाली लेंगे ना. तो गारंटी इज अ वेरी गुड क्वालिटी. अगर पीपल कैन टेक गारंटी के देखो इसको मैं कुछ भी बोल दूं, ये नहीं गुस्सा करेगी, दैट मीन्स यूर एन अचीवर. आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में. जो भी हम लोगों के लिए करें, हम इसलिए करें क्योंकि हमें करते हुए अच्छा लगता है. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप. लेकिन ये हमारी प्रोग्रामिंग है कि मैंने किया तो वो भी करेंगे, फिर उन्होंने नहीं किया तो मुझे बुरा लगेगा. देन वी मेक सिंपल थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. Do only what comes comfortable to you and be happy while you're doing it. Not happy after they do the same thing because they might not do the same thing. तो वो अपने संस्कार से चलेंगे, हमें अपने संस्कार से चलना है. उनकी नेचर उनकी, हमारी नेचर हमारी. हम उनके लिए अपनी नेचर को नहीं बदल लेंगे कि हम अपनी विशेषता को छोड़ दे, अपनी क्वालिटी को छोड़ दे. That's not to happen. But is there no way we can also improve them or guide them, especially in our family, or unko Of course. We can, I think we talk to our family more than enough about how they could change their sanskars. But कई बार क्योंकि family है, हम बार बार वो बात बोल नहीं सकते हैं. We cannot keep saying it again and again. तो change करने का सबसे easy तरीका, यहाँ से blessings भेजिए. And visualize them with that new sanskar. Suppose आपको अपने बच्चे को देखना है very polite, very respectful, and वो बिल्कुल ऊंची आवाज में नहीं बात कर रहा. अब आप बार बार बोल के ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका वो संस्कार है, और संस्कार बोलने से चेंज नहीं होता है, नहीं चेंज होता है. आप उसके लिए ये प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसको रोज विजुअलाइज कीजिए. सुबह मॉर्निंग में जब आप मेडिटेशन करें या प्रेयर करें, साइलेंस में बैठे, जस्ट क्रिएट अ ब्लेसिंग. You are a powerful soul, you are a peaceful soul, and आप हमेशा बहुत प्यार और शांति से बात करते हैं. आप एक मैसेज भेजिए, एक दुआ भेजिए, एक ब्लेसिंग भेजिए, और आप उसको विजुअलाइज कीजिए बड़े प्यार से बात करते हुए. Just do this every day. तो आप यहाँ से कम्युनिकेट करें, क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेट बार बार करेंगे तो और झगड़े हो जाएंगे फिर. सही बात है. I remember Deepa when telling me this also, कि just visualize and send the blessing. Yes. Vibrations work faster than words, क्योंकि वो penetrate through the ego of the other person करके वहां पर पहुंचते हैं. So now there's Niharika from Bala who says, first, my thanks to Shivani. I'm very thankful to her. She's changed my life. She's my savior. So my question is, sometimes there are situations which are so hard, like not being able to conceive or financial problems, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. How do we deal with that? How to control the mind always in such situations? And then of course she's added how to leave old bad habits permanently. Yeah. जब हमारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, संकल्प से सिद्धि. Our thoughts manifest. So suppose there is a financial problem, या इन 3 महीनों में ही देखें, we've been talking a lot about financial, कि कमी है, पैसों की कमी है, नौकरी छूट गई है, बिजनेस डाउन है, इकोनॉमी डाउन है. तो हमारी एक एक लाइन ऐसे वाली थी, डाउन वाली थी. संकल्प से सिद्धि मीन्स आवर थॉट्स मैनिफेस्ट. तो हमें बड़े ध्यान से सोचना चाहिए और बड़े ध्यान से बोलना चाहिए. तो हमें ये थॉट क्रिएट करनी चाहिए कि हमारे पास अबंडेंस है. कभी भी लैक की थॉट नहीं क्रिएट करनी चाहिए. मेरे पास अबंडेंस है, मेरी जॉब सेफ है, मेरा बिजनेस सिक्योर है, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माई लाइफ. इसको रोज सोचना है, बोलना है, विजुअलाइज करना है. धीरे धीरे आप बिलीव करना शुरू करेंगे एंड फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा. लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है और फिर हम कहते हैं बहुत प्रॉब्लम है, ठीक ही नहीं हो रही, प्रॉब्लम है, ठीक ही नहीं हो रही, कब ठीक होगी, फिर वो प्रॉब्लम 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 वर्ड ही मैनिफेस्ट होता जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट थिंक एंड रिपीट द प्रॉब्लम. वी विजुअलाइज आवर न्यू रियलिटी and we think and speak that. तो संकल्प से सिद्धि, our thoughts manifest. तो ध्यान रखना है.
Um, एक क्वेश्चन है, उन्होंने ये, दिस इज, आई कांट गेट हर नेम, बट शी इज रिटन दैट आई एम अ 28-year-old girl working in my family business. My issue is that since 4 years my parents are searching for a life partner for our marriage, and I'm not getting any person whom I can connect with or who allows me to work freely in my family business, and he understands me, loves or respects me. How do I use meditation, affirmations, and what exactly do I have to do to get my partner? सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, रिश्ते ऐसे नहीं होते कि आई शुड गेट लव, आई शुड गेट रिस्पेक्ट, आई शुड गेट। रिश्ते मांगने के लिए या चाहने के लिए नहीं होते हैं, रिश्ते देने के लिए होते हैं। यू हैव टू गिव लव, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव अंडरस्टैंडिंग। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मैच करने चाहिए। संस्कार हमेशा सारे मैच कर भी नहीं सकते, कोई भी दो लोगों के संस्कार मैच नहीं करेंगे, लेकिन एथिक्स प्रिंसिपल्स जो बेसिक होती है, एक नींव होती है एक व्यक्तित्व की, वो एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स मैच करने बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार हमेशा अलग होंगे और रिश्ता होता ही है एडजस्टमेंट ऑफ संस्कार, एक्सेप्टिंग ईच अदर संस्कार। लेकिन आप एक थॉट क्रिएट कीजिए कि द राइट सोल जिसके साथ मेरा एक बहुत ब्यूटीफुल कार्मिक अकाउंट है, I will meet that right soul at the right time. It's not about how soon we meet the person. It's about the beautiful karmic account that we will share with the person. तो उसके बारे में संकल्प कीजिए। I will meet the right soul as per my karmic account at the right time, but I will give in this relationship. ये रिश्ता देने के लिए जोड़ा जा रहा है, ऐसे नहीं खड़े होना कभी भी किसी रिश्ते में। That's the answer which she needs to realize, and all of us need to realize कि हम ये नहीं सोचते कि am I living up to the same lofty expectations जो मैं बांध रही हूँ लोगों से। The chat has asked कि overthinking को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। This is Vinny from Pune. She's asking मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ, उसे कैसे मैं कंट्रोल कर। जैसे हमारा शरीर कमजोर होता है तो वो कैसे पता चलेगा? हम 2 फ्लाइट स्टेप्स चढ़ेंगे तो हमें सांस चढ़ने लग जाएगा, हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो हमारे पैर में दर्द होने लग जाएगा, हम थोड़ा सा झुकेंगे तो हमारी पीठ दर्द हो जाएगी। दीज आर साइंस दैट माई फिजिकल स्टैमिना इज नॉट राइट। Overthinking is a sign that my emotional stamina is not right. I'm thinking too much about every scene of life. किसी ने कुछ कह दिया, I think too much. कुछ होने वाला है, आई थिंक टू मच। कोई सीन हो चुका है, आई थिंक टू मच। दिस इज अ साइन दैट आई नीड टू बिल्ड अप माई इमोशनल स्टैमिना। मुझे मन की शक्ति को बढ़ाना है। उसके लिए जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, एक तो ज्यादा कंटेंट नहीं कंज्यूम करना, ये कंटेंट बहुत ज्यादा थॉट्स क्रिएट करता है, तो कंटेंट रिस्ट्रिक्शन एंड कम से कम 30 मिनट्स अच्छा खुराक। ये कमजोर हुआ है क्योंकि खुराक ही नहीं दी है और जंक फूड बहुत सारा दिया है सारा दिन में। हेल्दी खुराक कुछ भी नहीं और जंक फूड सुबह से लेके रात को सोने तक। उठते ही पहले फोन देखते हैं, सोने से पहले लास्ट फोन देखते हैं। एक छोटा सा नियम बना लीजिए, एटलीस्ट 1 घंटा सुबह पहले फोन नहीं देखेंगे। 1 hour we should not look at our phone, which means हमें दुनिया की बातें सुबह सुबह इस पर नहीं भरनी है। ये एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है, सुबह एकदम क्लीन। उस टाइम जो इस पे डालते हैं वो एकदम अब्सॉर्ब कर लेता है ब्लॉटिंग पेपर, और हम उस पे व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया, फिर दुनिया की न्यूज, ये सब डाल देते हैं, 5-10 मिनट में ही डाल देते हैं। ब्लॉटिंग पेपर गेट्स सैचुरेटेड विद द वर्ल्ड। पहला घंटा हमारा अपने लिए है। इट्स दैट आवर परमात्मा से कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, अपनी प्रार्थना करें। सो कंज्यूम गॉड्स एनर्जी ऑन योर माइंड इन द मॉर्निंग, हाईएस्ट वाइब्रेशन। दुनिया की एनर्जी कंज्यूम करेंगे फिर तो बहुत कुछ भर जाएगा। तो सुबह का पहला घंटा और सोने से पहले का लास्ट घंटा, ये दोनों टाइम दुनिया के कंटेंट के लिए नहीं होता है। अगर सुबह 1 घंटा ध्यान रखेंगे, दिन अच्छा बीतेगा। रात को 1 घंटा ध्यान रखेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। ये दोनों बहुत मुश्किल आपने होमवर्क दिया है। लोग तो नहीं, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, छोटी सी आदत है सिर्फ। लोग उठते हैं तो टॉयलेट जाने के लिए भी फिर भी अपना फोन करके देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली नींद हो जाएगी उस टाइम पे, कोई ना कोई मैसेज ऐसा आएगा। आई नो ऑफ पीपल स्लीप विद नेक्स्ट टू देम। तो yeah, but that's exactly the point, then that is the reason for the anxiety. that is what is causing us so much. Yeah.
मैं एक तो क्वेश्चंस और शिवानी बहन आपसे लोग इतना कुछ पूछना चाह रहे हैं, इतना मैं No problem. I know I'm not able to answer so many people's question. Now this is Suhani. जैसे दीदी ने कहा लोगों को माफ करना ही चाहिए, मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों को माफ करते हैं, फिर वो लोग फिर से वही गलत धोखा हमें फिर से देते हैं। Yeah. तो उनको हम कैसे हैंडल किया जाए ना। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं सुहानी ने, पर पहले ये क्वेश्चन जो हर्ट हो जाते हैं लोग, हमें वी ट्राई टू बी गुड टू देम बट दे आर नॉट सो गुड टू अस समटाइम। यस, अगेन ये हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट है। एक तो हमें ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एवरीवन अराउंड अस, हम उनसे पहले मिल चुके हैं। वी आर सोल्स ऑन अ जर्नी, वी कीप मीटिंग ईच अदर। तो कुछ रिश्ते थोड़े से हमारे को डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि वो एक पास्ट कार्मिक अकाउंट का कैरी फॉरवर्ड है। सेकेंड चीज, फॉरगिव करना मतलब ये नहीं है कि हम उनको फॉरगिव कर रहे हैं, हम किसी और को फॉरगिव कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका कर्मा, उनका कॉन्सिक्वेंस उनके साथ चल रहा है। एक होता है लॉ ऑफ कंट्री, एक होता है लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कंट्री बड़ी बड़ी चीजों के लिए होता है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा तो हर क्षण वर्क कर रहा है, एवरी मोमेंट इट इज वर्किंग। सो नाउ इफ आई डू रॉन्ग टू यू, अगर मैंने आपके साथ गलत किया, तो मेरे गलत कर्म का कॉन्सिक्वेंस मेरे पास आने ही वाला है। चाहे आप मुझे फॉरगिव भी कर दें, आप मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस आप रोक नहीं सकते, वो कर्म का कॉन्सिक्वेंस तो मेरे पास आने ही वाला है। लेकिन आपको जो बुरा लग रहा है ना, वॉट यू आर फीलिंग बैड, तो आप अंदर सोचते रहते हैं, इन्होंने मुझसे ऐसे बोला, सबके सामने ऐसे बोला, इतना इनका ध्यान रखा, फिर भी इंसल्ट करके चले गए। नाउ दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड। तो एक्चुअली आपको जो फॉरगिव करना है ना, वो अपने आप को फॉरगिव करना है। आप मुझे नहीं फॉरगिव कर सकते। फॉरगिवनेस मतलब आप वो वाली बात को मन चित्त से खत्म करेंगे, तो आप अपने आप को क्षमा करते हैं, आप किसी और को क्षमा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो आप अपने आप को अब्यूज कर रहे हैं बाय बीइंग वेरी वेरी नेगेटिव टू योर सेल्फ इन द माइंड, उसको आपको फिनिश करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हमें ये याद रखना है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया, वो उनका कर्म, उनका संस्कार। अगर वो कोई फिजिकल चीज है, जैसे कोई आपको फिजिकली हिट करता है, फिजिकली अब्यूज करता है, देन इट हैज टू बी एन एब्सोल्यूट नो। वो हमें कभी भी नहीं लेना है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी बड़ा डिसीजन लेना पड़े। अगर कोई सिर्फ बोल रहा है या कुछ कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाइए, और आपको पता है वो सिर्फ उनका संस्कार है और उनका कर्मा है, वो हमें नहीं हर्ट कर सकते। हम हर्ट तब होते हैं जब हम उनकी बात सुनकर अपने आप को अंदर तकलीफ देते हैं। सो जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को क्षमा कीजिए, क्योंकि हमने अपने मन को बड़ा दुख दिया है, बड़ा कष्ट दिया है ये सब सोच सोच के। तो जब आप रोज सुबह अपने आप को नरिश करेंगे ना, तो अपने आप के साथ मीठी बातें करना बहुत इजी हो जाएगा। एक चीज हमें याद रखनी है, कोई भी हमारे साथ अच्छी बात अगर नहीं करे, कोई भी हमारे साथ अगर अच्छा व्यवहार ना करे, एंड नोबडी, वी नीड ओनली वन पर्सन टू बी नाइस टू अस हियर हियर। एंड अगर सब लोग मेरे साथ अच्छे बात करें, सब अच्छे हैं, लेकिन इफ आई डोंट टॉक नाइसली टू माई सेल्फ, आई कांट बी हैप्पी इन लाइफ। मैं खुश नहीं हो सकती। तो शिवानी बहन, मैंने अक्सर देखा, आई स्पेशली वांट टू टॉक अबाउट दिस टू पीपल हु फील कि हमारी लाइफ जब अच्छी होगी तभी हम खुश होंगे, तभी एंजाइटी नहीं होगी। इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं लाइफ वर्ल्ड में जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है इंटरनेशनली, इंडिया में, यहाँ पे भी, बट दे आर स्टिल डिप्रेस्ड, दे आर स्टिल अनहैप्पी, they are still want to take antidepressants, suicidal। कितने इंटरनेशनल टॉप स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं जिनके साथ ये हुआ है। एंड जब आदमी सोचता है कि ये लोग तो इतने इंटरनेशनल अचीवर्स हैं, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों खुश नहीं है। तो जो आपने बात अभी समझाई कि सब कुछ होते हुए अगर हम इधर से नहीं खुश, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तो वी कैन नॉट एवर बी हैप्पी। हमारी दो दुनिया है, एक बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया। यहाँ पर अचीव करना वेरी गुड, यहाँ पर ध्यान रखना इज अनदर पार्ट ऑफ लाइफ। हमने सोचा अगर यहाँ अचीव कर लिया तो यहाँ हैप्पी अपने आप हो जाएगा, वो नहीं है। यहाँ मेहनत करें, यहाँ अचीव करें, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ भी अचीव करें। So we have to achieve in both the worlds, the outside world and the inside world. It's like two gardens.
अभी आपका घर है, आपका एक गार्डन आगे होगा, एक गार्डन पीछे होगा। आप एक गार्डन को पानी डालेंगे अगर पूरा दिन और सोचेंगे पीछे वाला गार्डन अपने आप सुंदर बन जाए, तो ऐसा होने नहीं वाला। तो दुनिया को तो है ना, आपका आगे का गार्डन ही दिखता है सबको, लेकिन और आप पीछे के गार्डन में गए ही नहीं। लेकिन आगे के गार्डन को सबने देखा और कहा कितना सुंदर गार्डन है, इतना सुंदर गार्डन है। और पीछे के आपके गार्डन में वीड्स ग्रो कर रही थी क्योंकि आप 5 मिनट भी नहीं गए थे उस गार्डन के अंदर। सो दे आर टू गार्डन्स ऑफ आवर लाइफ। हम आगे वाले गार्डन में 23 आवर्स स्पेंड करें रोज, लेकिन कम से कम 1 आवर हमें पीछे के गार्डन के लिए रखना पड़ेगा। दैट इज सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन विद अ विजुअल आता है कि हम जब इसका क्या होगा। एक सवाल किसी ने पूछा है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं हमें क्या सोचना चाहिए, उस वक्त क्या थॉट्स रखने चाहिए, कैसे मेडिटेट। एक तो मेडिटेशन हमें सीखना चाहिए। हमें लगता है कि मेडिटेशन में कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाओ, क्लोज योर आईज एंड कोई भी थॉट्स नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन इज अ रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पावर एंड द रिलेशनशिप विद द इनर पावर। अपनी आंतरिक शक्ति और उस परम शक्ति के साथ एक प्यारा सा रिश्ता, जिससे हम वो परम शक्ति की शक्तियां और ज्ञान अपने अंदर भर सकते हैं। इसको आप सीखेगा एक बार जरूर। तो जब ये परिस्थितियां, सिचुएशंस थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, आप सेंटर पर आ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी, आप जहां भी रहते हैं, आपके बहुत 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर एक सेंटर जरूर होगा। और पूनम जी, आपको तो पता है हर सेंटर पर बहनें होती हैं सेवा करने के लिए, मेडिटेशन सिखाने के लिए। सो जस्ट गो वॉक इन टू एनी सेंटर एंड द सिस्टर्स विल बी देयर टू टेक केयर ऑफ यू। एंड द अमाउंट ऑफ लव एंड केयर यू विल गेट देयर, इट इज यस। बहुत ही आपका ख्याल रखेंगी और आपसे रिश्ता ऐसे बहन जैसे जुड़ जाएगा। तो एक एक और सवाल किसी ने पूछा है कि व्हाट यू डू व्हेन यू आर इन अ अब्यूज्ड रिलेशनशिप, सपोज लाइक मैरिज शी सेज, बट आपकी पूरी फैमिली बोलती है कि नो सेपरेशन, व्हाट डू यू डू, हाउ। That's what two kind of abuse. If one is physical, one is emotional. Yeah. If it's physical, then it's a no-no. बिकॉज आप या तो आप हीलिंग करवा सकते हैं अपने स्पाउस की अगर वो रेडी है। कई बार एक सामने वाले का भी वो एक संस्कार होता है जिसके वो परवश है, मतलब दे आर अ विक्टिम टू देयर ओन संस्कार, बट देन दे हैव टू बी विलिंग टू गो थ्रू अ हीलिंग। दे हैव टू बी विलिंग टू गो थ्रू अ थेरेपी, गो थ्रू अ काउंसलिंग। तो अगर रहना है तो फिर उसको ठीक करना है उस प्रोसेस को। लेकिन यू कैन नॉट गो थ्रू अब्यूज फिजिकल इन अ रिलेशनशिप, नो, बिकॉज दैट्स नॉट सेफ फॉर यू। That's not good for you, but that's not safe for you also. तो वो तो योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली हु थिंक कि नहीं नहीं स्टे मैरिड और कोई तरीका ही नहीं है लाइफ का, तो no, then only then try and get the healing done. See, it's like आप कुछ तो ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे ना। आप स्टे मैरिड करें, लेकिन कल आपको कुछ हो जाए अगर बिकॉज ऑफ दैट एडिक्शन ऑफ द अदर पर्सन, क्योंकि कभी कभी ये चीजें हाँ जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और वैसे भी why would we allow anyone to even touch us in that wrong way of abuse? तो वो तो नहीं होना चाहिए। लेकिन थेरेपी और हीलिंग से बहुत लोग ठीक हो जाते हैं, बहुत लोग ठीक हो जाते हैं और ये आदतें खत्म हो जाती हैं। और अगर वो थेरेपी भी नहीं कराना चाहते, वो मेडिटेशन सीख ले, वो योगा प्राणायाम करना शुरू कर ले। सी, ओनली योर ओन टॉक्सिसिटी हैज टू कम आउट। तो कुछ तो करें ना, some मेथड दे हैव टू यूज टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। तो योगा प्राणायाम करें, आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आइए, स्पिरिचुअल स्टडी यूज कीजिए, मेडिटेशन करिए, आप काउंसलर थेरेपिस्ट के पास जाइए, हीलिंग करिए। कोई तो एक मेथड आपको अपने स्पाउस के साथ जाकर इकट्ठे दोनों को करना होगा। then it's safe for you, because otherwise it's not safe for you. Tomorrow it might not be safe for your children also. और अभी एक किसी ने पूछा है कि जब हमें इतनी टेंशन हो रही है उस टाइम पे मेडिटेशन में भी ध्यान नहीं लगता है, व्हेन वी आर, हाँ बिल्कुल। तो मेडिटेशन माइंड बहुत वॉन्डर करता है, बहुत रेस्टलेस रहता है, बिल्कुल। हम कैसे। इसीलिए इसीलिए हम जब सेंटर पर आते हैं, हम मेडिटेशन बाद में करते हैं, हम पहले स्पिरिचुअल स्टडी शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल स्टडी डाइट है और मेडिटेशन एक्सरसाइज है। तो पहले डाइट लेके इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। अगर खाए बिना एक्सरसाइज करेंगे तो गिर ही जाते हैं, फिर हमारे से वो एक्सरसाइज होती नहीं है। तो हम कहते हैं ज्ञान और योग दोनों, मतलब स्टडी, स्पिरिचुअल स्टडी एंड देन मेडिटेशन दोनों। तो आप एक बार सेंटर पर जाकर ये सीखिएगा जरूर, आपको बहुत इजी लगेगा सीखने से, बट बस सीख के करना है। यस, दीदी दो दो सवाल और ले सकते हैं।
हाँ जी, जरूर, नो प्रॉब्लम। ओके, एक्चुअली इतने लोगों ने सवाल पूछा है, आई थिंक वी बीन टॉकिंग, तो हम सबकी एफर्मेशंस एंड मेडिटेशन, उन्होंने उसके लिए थोड़ी सी गाइड बोला है। आप दो तीन एफर्मेशंस उनको, एक्चुअली आप अगर शिवानी बहन की टॉक्स देखेंगे, आई थिंक शी गिव्स अ लॉट ऑफ गाइडेंस, एंड रेगुलरली आप सुनेंगे तो आपके मन को भी शांति मिलेगी और बहुत अच्छी खुराक भी मिलेगी। हाउ डू वी ड्रॉप द डिजायर्स, सिस्टर शिवानी? डिजायर्स। वी कैन नॉट ड्रॉप डिजायर्स, हम इच्छाएं छोड़ नहीं सकते, वो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो छोड़ी जाए। इच्छा मतलब जहां हम यहाँ पे इतना जब भरपूर नहीं होंगे, वी आर नॉट कंटेंटेड, वी विल वांट मोर। जो वांट है वो जीवन में चेंज होती जाएगी। एक बच्चे की वांट अलग होती है, एक टीनेजर की वांट अलग होती है, 50 इयर्स की एज में हमारी वांट्स अलग होती हैं, लेकिन हमेशा हमें कोई ना कोई वांट है, लोगों से, सिचुएशन से। एंड अगर किसी से भी पूछा जाए ये आपको क्यों चाहिए, बोलेंगे ये मिला ना मुझे खुशी होती है। सो हमारी वांट एक्चुअली हैप्पीनेस की है और कुछ भी नहीं है। कोई हमसे प्यार से भी क्यों बात करे, हमें खुशी मिलती है, प्यार मिलता है। तो वो जो सोल की 7 क्वालिटीज हैं, प्योरिटी, पीस, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, सतोगुणी आत्मा, 7 क्वालिटीज ऑफ द सोल। शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सुख और आनंद, ये 7 क्वालिटीज ऑफ द सोल है। और हमारी सारी इच्छाएं एक्चुअली ये 7 क्वालिटीज के लिए है। कुछ भी आप जो इच्छा रख रहे हैं ना, आपको एट द एंड ऑफ इट आप चेक करना, मुझे ये क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, आएगा या तो मुझे शांति चाहिए, या मुझे प्यार चाहिए, या मुझे खुशी चाहिए, या मुझे रिस्पेक्ट। वी नीड दैट, वी नीड दैट। आप एक नई ड्रेस भी क्यों लेना चाहते हैं, फिर मैं पहनूंगी, फिर सब देखेंगे मैंने नया पहना, फिर सब बोलेंगे अच्छा है, फिर मुझे अच्छा लगेगा। सो एवरीथिंग इज टू फील गुड। तो जब आप मेडिटेशन और डेली स्टडी से ये 7 क्वालिटीज को अपने आप क्रिएट करना शुरू कर देंगे, तो आपकी वांट अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप वांट को ऐसे ही नहीं खत्म कर सकते हैं, यू हैव टू फिल इट। तो लोगों से वांट के बजाय आप परमात्मा के ज्ञान से उस वांट को भरिए, फिर लोगों से वांट नहीं होगा, लोगों को देते जाएंगे। लेकिन उस वांट को भरना तो पड़ता ही है, इट कांट फिनिश ऑन इट्स ओन। इच्छाएं ऐसे ही हम बोले मेरे को कोई इच्छा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी फिल्ड। ये वैक्यूम को भरना तो पड़ता ही है। So what you take in, put into that vacuum, वो हम पे डिपेंड है। यस। मैंने देखा है some people हमारे हैं जिनके पास बहुत मटेरियल चीज, अच्छी गाड़ी लेंगे, एक दिन इसको देख के खुश होंगे, अच्छे गहने लेंगे, एक दिन देख के खुश होंगे, उसके बाद इट्स फॉर ग्रांटेड, क्या है वही तो पड़ा है, वही पड़ी है। So those don't permanent happiness, those are so momentary, and but हम उनकी before we get it हम इतने बेचैन होते हैं उसके लिए। लेकिन वो इतने मोमेंट्री है ना, तो फिर वो आपकी डोज की, जैसे एक ड्रग की एडिक्शन हो किसी को, तो उसने इतनी डोज ले ली, अब उसके बाद उसका असर खत्म हो गया, फिर उसको नेक्स्ट डोज चाहिए, फिर नेक्स्ट डोज चाहिए। सिमिलरली हमारी चीजों की इच्छाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये लिया, फिर थोड़ी देर खुश हुए, अब मुझे फिर खुश होना है, तो मुझे फिर कोई और चीज लेनी पड़ेगी, या मुझे कहीं घूमने जाना पड़ेगा, या मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, या मुझे टीवी देखना। आई हैव टू कीप डूइंग समथिंग सो दैट आई गेट समथिंग टू फील हैप्पी, बिकॉज वो बहुत थोड़ी देर रहता है और वो खत्म हो जाता है। इसीलिए यहाँ को भरना यहाँ की चीजों से पॉसिबल नहीं है। बाहर की चीजें फिजिकल कंफर्ट देती है, इसके लिए स्पिरिचुअल कंफर्ट चाहिए। Yes, and that is more permanent because that is permanent, because that is the value, that's not from a physical object. अच्छा, एक हमारे पर्सन हु इज विद अस सेड कि मुझे बहुत जेलसी होती है, आई कांट हेल्प बट मुझे बहुत जेलसी, हाउ डू आई कंट्रोल दैट एंड हाउ डू आई गेट ओवर दैट? जब आप धीरे धीरे ज्ञान को स्टडी करेंगे एंड आप समझेंगे कि एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। तो सपोज मी एंड अनदर पर्सन वर्किंग इन माय ऑफिस, दो लोग हैं, हम दोनों के कर्म और संस्कार बिल्कुल अलग हैं, और हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म थे वो भी बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हमारा भाग्य बिल्कुल अलग ही होने वाला है। जेलेसी इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इट्स लाइक अ रेस,
जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही सेम नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों के पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म बिल्कुल अलग है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो ही नहीं सकता, तो रेस में कैसे भाग रहे हैं। और जेलेसी से दूसरे का नुकसान नहीं होता, मेरा नुकसान होता है। तो हम जब ये समझ लेते हैं कि मुझे सिर्फ अपने आप से आगे जाना है, दुनिया से आगे नहीं जाना है, मुझे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। जब से हम सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करने लगे, हमारे अंदर कंपैरिजन और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब हम दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे थे। पहले हम सिर्फ अपने फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। तो वो प्लेटफॉर्म ही वैसे बन गए हैं कि हमारा कंपैरिजन बहुत ज्यादा होने लग गया है। सो दिस इज एन अफर्मेशन आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ एवरी डे कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई गिव टू एवरीबडी एंड आई ओनली इंक्रीज माई कैपेसिटी। मैं अपनी क्षमता को बढ़ाते जाती हूँ, एंड जब दूसरों को सफलता मिलती है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। ये मुझे रोज अपने इस मन को सिखाना है। एक बच्चे को कैसे बोलना सिखाते हैं, हमें अपने मन को सोचना सिखाना है। तो हम अपने मन को कहते हैं जब किसी और को कुछ मिलता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरा मन कहेगा नहीं, मुझे नहीं होती है, मुझे चाहिए कि मुझे मिलना चाहिए। तो इट्स लाइक अ बेबी हु टॉक्स, इट्स लाइक अ किड हु टॉक्स। सो यू हैव टू कीप ऑन टॉकिंग टू द किड टिल द किड लर्न्स द वेज ऑफ लिविंग, इस मन को। तो जितनी बार उस बात को रिपीट करेंगे, नरिश करेंगे, धीरे धीरे आप जेलेसी से कोऑपरेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे, हम कंपटीशन से कोऑपरेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। एंड जितना हम औरों को आगे बढ़ाएंगे, उतना हम खुद बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक्चुअली ये हमारे संस्कार कम, ये एक्चुअली समाज का संस्कार है। इट इज अ वेरी सोसाइटल कंडीशनिंग दैट वी हैव क्रिएटेड, that comparison, competition, this is a society conditioning that we have created। तो उसके प्रभाव से हमें अपने आप को बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन फिर उसके लिए रोज अपने आप को याद दिलाना पड़ता है that I am very happy when someone does well and I increase my capacity to do well। Yes, because आप ही ने आपकी एक उसमें आपने कहा था लाइक जेलसी और ऑल दीज नेगेटिव फीलिंग आर लाइक एसिड, वो जो सबसे ज्यादा नुकसान देता है द कंटेनर विच इज, तो आई थिंक दैट। क्योंकि आपको रोज अपने साथ रहना पड़ेगा ना, यहाँ पर यू हैव टू लिव विद योर सेल्फ। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, गिल्ट, जेलेसी, जो अंदर नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, वो तो हमारा ही नुकसान कर रही है सारा दिन। इनफैक्ट शिवानी बहन, जो आपने बहुत एक पर्टिनेंट एंड रेलेवेंट बात बोली आज के यूथ के लिए, लिविंग देयर लाइव्स थ्रू सोशल, वो हम खुद भी करते हैं कई बार, और हमारे आसपास देखते हैं एक टेबल पे फैमिली बैठी होती है, रेस्टोरेंट में सब फोटोज ही ले रहे होते हैं, एक दूसरे से बात हो ही नहीं रही होती, और खाना भी खाते हैं वो फोटो लेके फिर पहले डालते हैं। some extent I would say that, but because it has become the way of life today, see, खुशी से करो ठीक है, but उससे हम दूसरों की चीजें, and then we are getting very unhappy and very restless। They went to that restaurant, have this car, they are wearing these branded clothes, so life has all become about trying to live vicariously, किसी और की जिंदगी दिखाने की। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए, तो दुनिया तो जब बदले सब बदले, लेकिन हम अभी बदल सकते हैं। वी कैन चेंज। कोई चीज हमें दिख रही है कि दिस इज नॉट वर्किंग राइट फॉर माई माइंड, then I have to change my ways of living। The world can take their own time to change। हम वेट नहीं कर सकते कि दुनिया कब बदलेगी। We should change our ways of living। हमें सोशल मीडिया बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। Social media was designed only to connect with each other, to share with each other। किसी से बात कर ली, it was designed for that। अब वही चीज को हमने थोड़ा सा एक अलग लेवल पर लेकर चले गए। So it is for us to change that। Show off का medium। Yes, absolutely। Somebody has said a important question, self love को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? Is there a way? एक बार रिपीट करेंगे, आपका ऑडियो कट हो रहा था। सेल्फ लव को हम कैसे? हाँ, सेल्फ लव। देखिए, जब हमारे साथ कोई एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करता है या बात करता है, हम अपने आप से कैसे बात करते हैं अंदर, दैट विल डिसाइड वेदर आई लव माई सेल्फ। अगर हम लोगों से अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, then I don't love myself। then I will love myself only when people will say that I'm nice। Yeah। ये बचपन से प्रोग्रामिंग हो गई
कि मेहमान आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं पोइट्री सुनाओ, पेंटिंग दिखाओ, गाना सुनाओ, एंड विच इज ओके। लेकिन तब वो मेहमान कहते हैं वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल, तो वो बच्चे के अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है कि जब सब लोग कहते हैं ना वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल, देन आई एम अ गुड बॉय, गुड गर्ल। एंड लोग कब कहते हैं वेरी गुड बॉय? जब हम कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। तो हम इसलिए सारा दिन बाहर की दुनिया में ज्यादा फोकस्ड हैं कि हम कुछ परफॉर्म करेंगे, हम कुछ करेंगे, हम कुछ अचीव करेंगे, तो दुनिया कहेगी वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल। तो मतलब हम सारा दिन दुनिया की सामने खड़े हैं, मुझे अच्छा बोलो। दिस इज नॉट सेल्फ लव। दिस इज वेटिंग फॉर पीपल टू इंडोर्स अस, फॉर अस टू बी नाइस टू आवर सेल्फ। सेल्फ लव मतलब चाहे कुछ भी मेरे अनुसार ना हो, नथिंग इज माई वे, आई स्पीक राइट टू माई सेल्फ, आई एम काइंड टू माई सेल्फ, आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद एनीबडी। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और के साथ कभी नहीं करेंगे। तो खुद से प्यार करते हैं तो किसी और के साथ कंपैरिजन क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? सो ऑल द थिंग्स हमें पता है ना, प्यार क्या होता है। जो हम औरों के लिए करते हैं सेम चीज अपने आप के लिए कीजिए। किसी और का मूड खराब होगा, हम उनसे प्यार करते हैं, हम जाके उनके पास बैठे रहते हैं, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं जब तक उनका मूड ठीक नहीं हो जाए। अब सपोज आपका बेटा कहे मॉम प्लीज गो, जस्ट लीव मी अलोन, आप कहोगे नो, जब तक आपका मूड ठीक नहीं होगा आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू बिकॉज आई लव यू। अब खुद का मूड अगर खराब हो तो अपने आप के साथ भी प्यार से बात करो जब तक मूड ठीक ना हो जाए। अपने आप के साथ नहीं करते, अपने आप को कहते हैं मेरा आज मूड ठीक नहीं है, मैंने अब खाना भी नहीं खाना है। सो दिस इज सेल्फ अब्यूज। दिस इज सेल्फ अब्यूज। वी अब्यूज आवर सेल्फ अ लॉट इमोशनली। तो सेल्फ लव सबसे कम होता है। अ, हम्म। शिवानी में दो तीन ये क्वेश्चंस हैं। फोबियाज, लोगों को फोबियाज होते हैं, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे उन्हें किस किस्म के फोबियाज? आई डोंट नो, शी इज बेसिकली जस्ट आस्क्ड अबाउट फोबियाज। फोबिया मतलब कोई भी चीज का डर लग सकता है, किसी को हाइट का, किसी को पानी का, किसी को लोगों का, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का, पब्लिक परफॉर्मेंस का। बहुत सारे जो हमारे फोबियाज होते हैं वो पास्ट लाइफ के होते हैं। A lot of phobias are related to my past life. अब सपोज एक शहर में फ्लड आता है एंड उस फ्लड में किसी की डेथ होती है, तो द सोल हैज लेफ्ट द बॉडी इन बिकॉज ऑफ वाटर, है ना। तो वो सोल पे रिकॉर्डिंग क्या हो जाती है? वाटर इज इक्वल टू पेन। वाटर की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खो दिया। सो वो आत्मा को नेक्स्ट लाइफ में पानी से डर लगेगा, तो वो एक फोबिया है। लेकिन वो अब नेक्स्ट लाइफ में उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स उसको कैसे उस फोबिया को ओवरकम करने में मदद करते हैं। इट्स नॉट कि हम पास से हमने फोबिया कैरी किया तो हम लाइफ टाइम वो फोबिया कैरी करें, वो नहीं है। कुछ फोबिया इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम वोम्ब में हैं तो हमारी मदर को फोबिया है किसी चीज का, या उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो डर रहे थे, तो हमें उस चीज का डर गर्भ में प्रोग्रामिंग हो जाती है वो। सो दीज आर लिटिल थिंग्स विच हैपन, बट वी कैन ओवरकम एवरी फोबिया। कोई ऐसा डर नहीं है जो हमारे साथ अगेन कंटिन्यूसली चलेगा। लेकिन हमें जैसे उस फियर को ओवरकम करने के लिए एक तो हमें आसपास के लोगों की हेल्प चाहिए उसके लिए, और थोड़ा सा हमें वन, जैसे पानी से डर लगता है तो वन स्टेप एट अ टाइम आई विल हैव टू गो क्लोजर। मुझे एक नई रिकॉर्डिंग यहाँ करनी है कि पानी से कंफर्टेबल है, तो मुझे सिर्फ पहले छूना है, पहले एक उंगली लगानी है। आई हैव टू अलाउ माई माइंड टू रिकॉर्ड अ न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरा पुराना एक्सपीरियंस था वाटर इज इक्वल टू पेन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अफर्मेशन क्रिएट कीजिए, दैट वाज अ पास्ट कार्मिक अकाउंट एंड वो खत्म हो चुका है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद, एंड फिल इन द ब्लैंक यू राइट जिस चीज का आपका फोबिया है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद वाटर, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हाइट्स। मैं कितनी भी ऊंचाई पर जा सकती हूँ। लेकिन हम क्या कहते हैं? मुझे पानी से डर लगता है, मैं पानी के पास नहीं जाऊंगी, मैं ऊपर तो बिल्कुल। सो वी रिपीट दैट अफर्मेशन अगेन एंड अगेन। तो उस फोबिया की अफर्मेशन नहीं करनी है, ऑपोजिट अफर्मेशन करनी है, एंड बस थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। somebody has mentioned कि उनको अगर स्टैमरिंग का प्रॉब्लम हो, how to overcome the physical some maybe weaknesses, is there something to do again with past life, or
these are physical Could be birth also, could be childhood also. Lekin there is a lot of therapy which can help us to overcome stammering. Of course, there's a lot of teaching, and साथ साथ emotionally strong रहे. ये ठीक हो जाएगा, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे strong रहे, uncomfortable न feel करें. Most important, be confident. ये ना फील करें कि मेरे पास औरों से कुछ कमी है. ये जो कमी की फीलिंग है. I want to, हाँ because ये सीक्रेट नहीं है, so I'm not betraying anybody's confidence. हमारे टॉप एक्टर ऋतिक रोशन, वो चाइल्ड हाँ जी, करते थे ऋतिक, यस, ने हाँ ओवरकम किया उसको. ही वाज आल्सो वेरी यस, स्किनी चाइल्ड. तो self के साथ एंड डिटर्मिनेशन के साथ आई थिंक ओवरकम किया जा सकता है. एंड राइट, फुल एफर्ट बहुत करना पड़ता है हर चीज. एब्सोल्युटली. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने आप को कम नहीं समझना औरों से, क्योंकि नहीं तो वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, और अगर बढ़ गया तो वो स्टैमर और बढ़ जाएगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीवन हैज समथिंग, डजंट हैव समथिंग, इट डजंट मैटर. लेकिन इफ आई स्टार्ट फीलिंग आई डोंट हैव व्हाट एवरीबडी हैज, तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, फिर वो ठीक होने में आई विल टेक लॉन्गर. सो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योरसेल्फ, then work on the physical thing which has to be changed. One other question which is so true in today's relationships is space देनी है एक दूसरे को. Please give me space. अब पेरेंट्स कितना स्पेस दें बच्चे को, हस्बैंड वाइफ आपस में कितना स्पेस दें, फ्रेंड्स कितना स्पेस दें. व्हाट इज दिस गिविंग स्पेस और ओवरस्टेपिंग दैट स्पेस जिसे हम रिश्तों में रखते हैं? एक्चुअली कभी कभी समझ ही नहीं आता वो लाइन का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो वो लाइन को इंटरप्रेट हर एक अलग अलग करेगा. क्योंकि योर डेफिनेशन ऑफ स्पेस, माय डेफिनेशन ऑफ स्पेस, आज आपके बेटे का डेफिनेशन ऑफ स्पेस, कल उसके आगे बच्चे की डेफिनेशन ऑफ स्पेस, वो डेफिनेशन ऑफ स्पेस तो बहुत डिफरेंट होने वाली है ना सबकी. वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल अ पर्सन कि आप मेरी लाइफ के इस एस्पेक्ट में आप इंटरफियर मत कीजिए, ये बाउंड्री मेरी है, इस बाउंड्री के अंदर आपको नहीं आना है. अब पहले तो हम ये सब लाइंस यूज नहीं करते थे, हम अपने पेरेंट्स को कोई अपनी बाउंड्रीज नहीं बता सकते थे, वो पॉसिबल नहीं है. जितना हम ये बाउंड्रीज क्रिएट करते जाते हैं ना, हम एक्चुअली अपनी पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट को घटाते जा रहे हैं. हम अपने आप को ऐसे 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 कर रहे हैं, और जैसे कि एक मकान बड़ा सा बना दिया, उसकी बहुत बड़ी फेंस लगा दी, कोई मेरे इस मकान के अंदर एंटर नहीं कर सकता, मतलब नोबडी कैन एंटर इनटू माय दिस एरिया ऑफ स्पेस. क्यों? क्योंकि अगर कोई एंटर करता है तो मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है. इट्स ऑल अबाउट माई माइंड. अगर आपने 2 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए किसी से, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है. सो वी से डोंट इंटरफियर इन माय दिस पार्ट. कोई पूछ लेगा, आंसर देना नहीं आ देना, दैट इज आवर चॉइस. हम बोल सकते हैं कि नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट फील लाइक शेयरिंग अबाउट दिस, वील टॉक अबाउट इट अनदर टाइम. लेकिन हमारे माइंड को हम स्टेबल कैसे रखें, वो पावर तो हमारे को इंक्रीज करनी है. लेकिन जितना हम ऐसे ऐसे होते जाते हैं, हमारी अपनी इमोशनल हेल्थ कम होती जाती है. इसलिए जब हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम्स था, वी वर इमोशनली स्ट्रोंगर, क्योंकि हमें 8-10 लोगों के साथ रहना था. स्पेस का तो फिजिकल स्पेस का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, इमोशनल स्पेस तो अलग बात है. और एडजस्ट एंड टॉलरेंस पावर बढ़ी हुई थी, क्योंकि वी हैड टू एडजस्ट अ लॉट. फिर 5, फिर 4, फिर 2, अब 1. तो फिर एडजस्टमेंट पावर यूज ही नहीं हो रही है, और उससे इमोशनल हेल्थ अफेक्ट होती है. तो इन वोकैबुलरीज को जो हम लाइंस इधर उधर से पिकअप कर लेते हैं ना, कोई मीडिया से, कोई मूवी से, कोई सीरियल से, उसको वहीं सीरियल तक ही छोड़ के खत्म कर देना चाहिए. उसको अपनी कल्चर, अपने संस्कार नहीं बना लेना चाहिए. एडजस्ट करें लोगों के संस्कारों के साथ, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. इट्स वेरी हेल्दी फॉर अस टू बी एबल टू एडजस्ट विद पीपल्स संस्कार्स. इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम सीरियल्स और सब देखते हैं, लोगों को समझना चाहिए दे आर क्रिएटेड टू क्रिएट ड्रामा, क्योंकि ड्रामा होता है उनमें रियल लाइफ में, वो ड्रामा बिल्कुल है बिकॉज दैट इज अननेचुरल एंड अनहेल्दी ड्रामा विच इज क्रिएटेड ना. लेकिन पहले जब हम कितना ड्रामा कंज्यूम करते थे, थोड़ा सा ना. अब जब हम स्कूल में थे तो 3 महीने बाद एक मूवी देखने को मिलती थी. लेकिन आज का बच्चा कितना ड्रामा कंज्यूम कर रहा है. तो जब हम बहुत ज्यादा ड्रामा कंज्यूम करेंगे, तो हमारी लाइफ भी वो ड्रामा के आधार से चलनी शुरू हो जाएगी. लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ये लाइफ एंड रीबर्थ का जो साइकिल है, इज दैट डिजायरेबल, नॉट डिजायरेबल?
how do we we do karma so we get a better next life में हमारी better life हो. और अगर हमें लगता है कि हम को वो होना ही नहीं चाहिए, how to put an end to it, what is the way to go about it to end this cycle of birth, rebirth, obedience? So I don't know. या अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें फिर से आना ही नहीं है, बर्थ लेना ही नहीं है, लेकिन क्यों नहीं लेना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों नहीं लेना है? अगर आपको अभी कोई कह दे कि आप अभी जहां बैठे हैं बस यहीं बैठे रहिएगा, अब इसके बाद उठिएगा नहीं, बिल्कुल किसी से मिलिएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, ओनली सिट स्टिल हियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो इज दैट अ वेरी कंफर्टेबल और अ वेरी नाइस ऑप्शन? नहीं. यू विल से व्हाई शुड आई सिट ओनली इन वन प्लेस, आई विल गो, आई विल डू दिस. तो कर्म करना आत्मा का संस्कार है. कर्म करना आत्मा का संस्कार है. लेकिन हम थोड़ा सा खुश नहीं है ना जब इस जीवन में, तो हम कहते हैं मुझे जीवन चाहिए ही नहीं आगे. So we don't want to play the game of life. But the game of life can be very, very beautiful if we play right. हम गलत खेलते हैं तो फिर चीटिंग होती है, चोट लगती है, तब हम कहते हैं मुझे गेम खेलनी नहीं है. जब कोई गेम में चीटिंग होती है तो मेरे को खेलनी नहीं है अभी गेम तुम्हारे साथ. लेकिन अगर हम अच्छे से खेलें तो द गेम इज अ वेरी बिग फन, इट्स एन एंजॉयबल थिंग. तो ये नहीं सोचना कि नेक्स्ट बर्थ में क्या होने वाला है, ये सोचे कि हमारा हर संस्कार और हर कर्म अभी के लिए एक्यूरेट है. अगर मेरा हर संस्कार और हर कर्म अभी के लिए एक्यूरेट है तो मेरी प्रेजेंट लाइफ ब्यूटीफुल. अगर मेरी प्रेजेंट लाइफ ब्यूटीफुल तो उसके बाद नेक्स्ट जो भी होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा. तो लेट्स फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड मेक इट आवर परफेक्ट वर्जन. थैंक यू सो मच शिवानी बहन. आपसे मैं बहुत घंटे और बात कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू ओवरटेक टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Of course, there's so many answers, questions which people still had, and I will definitely would love you to come again. Thank you. Sure, Ji. Sure. Thank you so much, Om Shanti. Thank you. So, dear friends, we've had an amazing session with Sister Shivani Ben, and I did try to take most of your questions, but I'm afraid I may have missed a lot because I couldn't read and look at her and answer and hear her at the same time. So please, I'm sure कई आपके सवाल ऐसे थे जो उन्होंने वैसे ही आंसर कर दिए दूसरों के उसमें. तो best wishes to all of you, and I'm going to continue once a week to have a Insta live with you all. I will try and get people from different fields जो आपको जिनसे फ़ायदा होगा, चाहे वो हेल्थ हो, एंग्जाइटी हो, आपकी डाइट हो, आपकी फैमिली लाइफ हो. तो बहुत बहुत शुक्रिया to be there. Thank you all very very much. It would have been meaningless without you being there today. Thank you. How to say? Say. Are you sure you want to end now? End now. And now and then. Yeah, end.